to the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning, every students. My name is Ashutosh Kumar Pandey from Saraswati Vidya Mandir, Ringband, Sitamarhi. Today I am with you with the third video of Bismillah Khan. In this video, we shall read the paragraph number 9 to 13, and today I shall complete this chapter in this video. Up to now we have read about Bismillah Khan, that how Shehnai was discovered and how it is called Shehnai, how Bismillah Khan started playing Shehnai with the help of his uncle when his mother used to take him to his maternal grandmother's house, and he also helped his uncle in Allahabad music conference. He became also the part of celluloid world, that is Bollywood, but his career was only 2 films he did. Now he decided that I can't be the part of this artificiality and glamorous world. So he left that world, that is film world, and he said these lines with emphasis, मतलब पूरा जोर देकर इन्होंने कहा था कि मैं इस बनावटी दुनिया का हिस्सा बनना नहीं चाहता. 9 में क्या क्या लिखा है हम इसको पढ़ते हैं. Awards and recognition came thick and fast. Thick and fast means quickly and continue. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. यानी अवार्ड भी मिल रहा था, पहचान भी मिल रही थी, कंटिन्यू मिल रही थी और तेजी से मिल रही थी. बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय बने जिनको लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किया गया था परफॉर्मेंस देने के लिए, और यह लिंकन हॉल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है. He also took part in the World Exposition in Montreal. Montreal is the name of a country. World Exposition means World Fair. In Cannes Art Festival में इनको इनवाइट किया गया, ओसाका ट्रेड फेयर में इनवाइट किया गया. So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mausiqui Ustad Bismillah Khan. विदेशों में ये इस तरीके से फेमस हो गए कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम इनके नाम पे रख दिया गया. ऑडिटोरियम वैसे हॉल को कहा जाता है जहाँ पे म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस होते हैं. आपके शहर से एग्जाम्पल लिया जाए तो आपका राजेंद्र भवन, नेहरू भवन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ऑडिटोरियम. तो जिस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया था उसका नाम था तहार मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तेहरान के में एक ऑडिटोरियम का नाम बिस्मिल्लाह खान के नाम पे रखा जाता है. सो दिस इज द बेस्ट, दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर हिम. Paragraph number 10. National awards like Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred to him. Conferred means given. Especially this word is used when a person is given award or any kind of degree. This word is used. So national award है भारत का, पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, उनसे भी इनको नवाजा गया. And most important, in 2001, Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. तो भैया बहन याद कर लेंगे, 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला. With the coveted award resting on his chest,
Coveted means much desire, बहुत तीव्र इच्छा रहती है हर को कि मुझे यह अवार्ड मिले। उन्होंने इस अवार्ड को अपने चेस्ट से सटा कर रखा था। And his eyes glinting with rare happiness, उनकी आंखों में खुशी की चमक थी जो कि रेयर होती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं बस यही कहना चाहता हूं इस दिन कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक जरूर सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह भारत के सबसे समृद्ध ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि विदेशों से लोग आ रहे हैं हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए, और हम हिंदुस्तानी ही इसे नहीं सीख रहे हैं। सो दिस इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर अस, वी मस्ट लर्न म्यूजिक। पैराग्राफ 12 अब हम लोग पढ़ेंगे। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. Means उन्होंने पूरे कंट्री, पूरे विदेश की यात्रा की थी, उसके बावजूद भी प्यार से लोग उन्हें खान साहब कहते थे। तो खान साहब को सबसे अच्छा कोई प्लेस लगता था इस पूरे वर्ल्ड में तो वो बनारस और डुमराव था, और उनके नज़र में ये सबसे वंडरफुल टाउन्स हैं वर्ल्ड के। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. उनके स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट ने एक बार उनसे कहा कि यूएसए में यानी अमेरिका में एक म्यूज़िक स्कूल खुल रहा है, शहनाई स्कूल खुल रहा है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस स्कूल के हेड बने। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उस स्टूडेंट ने यह भी कहा कि बनारस में जितने भी टेम्पल्स हैं मैं उन सारे टेम्पल्स का डुप्लीकेट बना दूंगा। इसलिए मेरा आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर यूएसए में भी रहेंगे तो आपको बनारस का एहसास होगा, सारी मंदिर आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने एक कंडीशन रखा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। यस, आई एम रेडी टू गो विथ यू, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। मुझे कोई समस्या नहीं है उस शहनाई स्कूल का हेड बनने में, लेकिन मैं तभी जाऊंगा जब तुम बनारस से रिवर गंगा को अपने साथ अमेरिका ले चलोगे। ये संभव था नहीं, आप जानते हैं। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड, बाद में उन्हें याद है, दैट इज वाई whenever I am in foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। yearning मतलब तरसना। जब मैं किसी विदेश की धरती पे होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान के लिए तरसता हूँ। While I in Mumbai I think of only बनारस and the holy गंगा। और जब मैं हिंदुस्तान के मुंबई शहर में रहता हूँ तो मैं सिर्फ दो चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, एक बनारस और दूसरा पवित्र नदी गंगा। और जब मैं बनारस में होता हूँ आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। तो मैं बनारस में डुमराव के मठ को मिस करता हूँ। कहने का ये सेंस है कि जब ये विदेश में होते हैं तो हिंदुस्तान को मिस करते हैं, जब ये हिंदुस्तान के मुंबई शहर में होते हैं तो ये बनारस को मिस करते हैं, और जब ये बनारस में होते हैं तो ये डुमराव के मठ को मिस करते हैं। होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। एक कन्वर्सेशन है शेखर गुप्ता, ये रीडर डाइजेस्ट एक मैगजीन है, उसके एडिटर हैं।
उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ तो क्या आपकी और आपकी फैमिली ने नहीं सोचा कि हमें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान ने कहा गॉड फॉरबिड, भगवान माफ करे, लीव बनारस कि मैं कभी बनारस छोड़ के जाऊं, नेवर, कभी नहीं जाऊंगा। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। और कैसे गया? तो आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। मैंने सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को मैंने क्रॉस किया ताकि अगर कोई पूछे तो मैं उनसे कह सकूं कि यस मैं पाकिस्तान गया था, लेकिन मैं सिर्फ बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैंने 1 घंटे वहां बिताए। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस। आई हैड अ गुड लाफ। मैंने पाकिस्तानी से नमस्कार कहा, हिंदुस्तानियों से सलाम अलैकुम कहा, इंडियंस से। उसके बाद मैं बहुत जोरों से हंसा। रीडर्स डाइजेस्ट इस मैगजीन याद रखेंगे। और शेखर गुप्ता कौन है? तो इस मैगजीन के एडिटर हैं। द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत की संस्कृति और भारतीय विरासत का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन। कैसे? वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट, और कोई भी बिना किसी हार्ड वर्क और बिना किसी एफर्ट के इस बात को मान भी लेगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है ये बेस्ट एग्जाम्पल है भारत के समृद्ध कल्चर और हेरिटेज को दिखाने का। बीइंग अ डिवाउट मुस्लिम, वो एक कट्टर मुस्लिम थे, एंड कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। So every religion has its own worship place, like Muslim worship in mosque, Indian Hindu worship in temple, Sikh worship in Gurudwara, and Isai worship in church. Being a Muslim, he used to play Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. What an example! क्या उदाहरण है भारत की सभ्यता और संस्कृति को दिखाने का कि that he was playing Sahnai every morning at Kashi Vishwanath temple. Kashi Vishwanath temple, it is in Banaras, very famous temple. And Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. Prolonged मतलब लंबा, लंबी बीमारी से ये ग्रसित थे, पीड़ित थे, और इनकी मृत्यु हो गई 21 अगस्त 2006 को 90 उम्र में। 90। He was given a state funeral. उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया, मतलब पूरी राज्य सरकार इनके फ्यूनरल में शामिल हुई, पूरा राज्य शामिल हुआ। और भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने 1 दिन की शोक रखी। पूरा देश शोक मनाया जब इनकी मृत्यु हुई, और 1 दिन का शोक डिक्लेयर कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बिस्मिल्लाह खान कैसे बचपन से सहनाई सीखे, कैसे वो इंस्पायर्ड हुए, कौन कौन सा अवार्ड उन्हें मिला, कौन कौन से फिल्म में उन्होंने काम किया, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला,
ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ा। एंड ही डिड नॉट वांट टू लीव हिज ओन कंट्री, वो अपना देश नहीं छोड़ना चाहते थे, बावजूद इसके कि उन्हें बहुत सारा ऑफर मिला, फिर भी वो नहीं गए। Unfortunately, he died on 21st August 2006 at the age of 90. It was a great loss for India. So in this manner we read this chapter from paragraph number 1 to 13. In the next video we shall discuss the question answer of this lesson. Thank you very much. Thank you.